हाँ, एक साल 2 दिन में शूट हुआ था। पहले हमने किए न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, क्योंकि स्पॉट्स की जाने कैसे हो गया, करना वो बहुत मुश्किल देखा था। जब से इधर से शूट करने का तुम्हें अच्छा व्यू आया प्यार है। तुमसे और हो लिबर्टी, गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चैन मेरा खो न्यू जर्सी में जो इम्पोर्टेंट है उसको जाने देखना पड़ेगा। कैसे हो गया, और शिकागो, देखा जब न्यूयॉर्क से सिटी में भी जो तुम्हें टाइम प्यार स्पेंड वो सब तुमसे कुछ हो इम्पोर्टेंट है गया। लोगों को। इसलिए 2 दिन में बहुत जगह करना पड़ा, लेकर के शिफ्ट करना पड़ा। और सेम थिंग शिकागो में वो भी हमारा कल्पना से बनना पड़ा। Thank you, Gurgi sir, producer, for the opportunity. Thank you, sir. Thank you very much. And Ankita ji, Ankita Jadhav ji, thank you very much. And through main Jain Karyan ji, music super. Right? Songs, music very excellent, sir. Very excellent. Please come to the Tollywood industry. गानों में आकर मेरे कुछ कह Ranji, जाना, super, very nice song, a very musical song. And main lyrics, Sanjeev K. Sharma sir, and बातों singer ही Sarojit बातों में Bora. अपना बनाना, Very nice music and lyrics also and singing also very super. रहे ना Second कोई song also दूरियां, very nice, super hit बाहों में मेरी song बंद and करके lyrics बना also लो super, तुझे very nice. साजना। And choreography, songs, music బాగుంటేనే కొరియోగ్రఫీ కూడా మాకు కొంచెం ఇది వస్తుంది అంటే ఫీల్ మ్యూజిక్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సార్, ధన్యవాదాలు సార్, ధన్యవాదాలు సార్. गॉड बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा कि हम न्यूयॉर्क में शूट करेंगे, क्योंकि मैं अपने फिल्म प्रमोशन के लिए गई थी इंडिया के लिए, और वहाँ मुझे मौका मिला शूट को ट्रेविस करने के लिए। तो ट्रेविस करते समय मासूम जी मुझसे कोरियोग्राफ कर रहे थे, और वो परफॉर्मेंस सांसों में खुशबू तेरी ऐसी समाई, कोरियोग्राफर है, मुझे तेरी याद जाने चिरंजीवी कितना सताए, उनके गानों के तेरे ऊपर, बिना और तो उन्होंने मुझे रहा नहीं और आपने अगर पुष्पा का ग्रैंड दूरियां जो है वो देखा होगा, सही नहीं जाए, इवेंट लॉन्च रहे तो मेरे पास ही, यही है मेरी आस भी, छुपा के तुझे इस जहां से बना लो मैं रांझना। It will be my huge privilege if we do song together in New York. I don't think so कि नए प्रोडक्शन के लिए हम जैसे नए टैलेंट को अगर किसी ने इतना सपोर्ट किया है, तो इनकी नम्रता मैं बोल सकती हूँ, humbleness of this master and humbleness of our producer, that we approach and we work together, and master said yes, I will work, we will work, and master said like how we will work, you know, we have very less time, so we got a beautiful song from Sanju sir and Jayan sir immediately, and we shot in a very thunder cold, and New York is a very busy city, and planning of visuals with our Bollywood emotions and lyrics is difficult, but when we have a talent like Satya Master Garu, what is impossible? So he made everything possible. He doesn't know Hindi very well, but somehow he represents our country, our culture, and our love, emotion in such a beautiful way as you have seen it. So big thank you to Satya Garu casting me, thinking about me, and saying yes to direct this music video. And I want to thank second person, Mr. K.K. Reddy Garu, the producer of this song. We know it is gonna cost us a lot, and when we approach the song, so we want to shoot in New York, and we approach the song, then the producer, not even one time he said that no, how we are gonna like we are not able to put that money, or I will not able to put that support to the New York visuals. So for this grand success, every small or big credit goes to the producer sir, who said for everything yes. If you think this is right, please do it and make this song great success.
I want this song to be great success, to be great memory for the Bollywood and for the Tollywood. And like him, producers are very rare. So thank you so much, sir, making this song grandly. वापस देखेंगे बात और मैंने देखा visualization was so beautiful. Fantastic job. So I can understand कि कैसे crunch में काम किया सेम सिचुएशन में तो मैं सांसों में खुशबू तेरी ऐसी समाई, मुझे तेरी याद जाने कितना सताए, तेरे बिना तो मुझे रहा नहीं जाए, दूरियां जो है वो सही नहीं जाए, रहे तो मेरे पास ही, यही है मेरी आस भी। Thank you so much for supporting our song, and I hope you like our song. Yeah, thank you so much. खूप छान आहे आणि असा सपोर्ट करत राहा आणि कॉंग्रॅच्युलेशन अंकिताला गाण्यासाठी आणि खूपच छान आहे. हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता जाधव. न्यूयॉर्क और शिकागो में शूट करना इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. And God always says that if you ask me, I will give it to you. And this is beyond God has given me. That मैंने कभी उनको पूछा नहीं था कि मुझे अमेरिका में आप कुछ फिल्म शूट के लिए लेकर जाइएगा. So I'm so thankful, I'm so grateful for this opportunity, for Satta Master casting me, and the producer sir, Mr. K.K. Reddy garu. शूट करना बहुत ही मुश्किल था बिकॉज न्यूयॉर्क इज़ वेरी वेरी क्राउडेड प्लेस और मुझे सुबह 3 बजे उठना पड़ा क्योंकि हमें बोला गया था वहाँ के लोकल लोगों ने कि 6 बजे के पहले आपको वो जो ब्रिज है वहाँ पे सबसे पॉपुलर ब्रिज वहाँ पे आपको शूट करना ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज आप वॉकिंग लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो. तो बहुत मेहनत का काम था क्योंकि हमारे पास क्रू मेंबर्स बहुत कम थे एंड somehow मास्टर जी ने इतना ब्यूटीफुली उस ब्रिज पे और बहुत सारी जगह पे कैप्चर किया है. और मैं हमारे जो सिम्मा जी जो प्रोडक्शन के थे और जो हमारे श्रीकांत जी जो कैमरामैन थे वो जो डालास से है श्रीकांत जी, तो उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ. जो विजुअल्स इन दोनों ने मिलकर प्लान किए थे इतने क्राउडेड एरिया में और जो प्रोत्साहन इन्होंने मुझे एक शूट करते समय दिया है, मैं तो मैं अंदर से डेड हो गई थी बिकॉज मुझे इमेजिन ही नहीं करना था कि क्या था मेरे आसपास. मुझे इतना ही था कि मुझे ब्यूटीफुल दिखना है, मुझे इमोशंस को पोर्ट्रे करना है. मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है ये मुझे प्रूफ करने का एज एन एक्टर. और गॉड ने जो ब्लेसिंग मुझे दी है उसको मैं ग्रांटेड नहीं ले सकती. मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है. बट मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ. मैं इसको इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि ये मैं हूँ इस पे. और बिकॉज आई एम फ्रॉम not a filmy background and it's hard to get this kind of opportunity, and it is only the God who has manages all this stuff for me. So it was really great experience. जब मैं शिकागो में शूट कर रही थी, शिकागो is the most coldest city in the whole wide world. It's the most windy city. जब न्यूयॉर्क में इतना विंड था कि कैमरा यहाँ लगा पूरे कोल्ड है ऊपर से विंड है तो आपको बहुत ज़्यादा विंड लगती है. आपके लिप्स नहीं चल पाते हैं, आपके इमोशन आप. और मैं मुंबई से हूँ तो हम यहाँ बॉम्बे में पैदा हुए लोग हैं. तो मैं गॉड को प्रे कर रही थी कि कुछ भी हो. जब मैं शिकागो के ओशन में शूट कर रही थी तो ऐसे मेरे हाथ पत्थर हो गए थे, मूव नहीं हो रहे थे. और मेरे ये कॉस्ट्यूम्स ऐसे थे, ओपन था. सब लोग बोल रहे थे कि ठीक है नहीं मैं करूँगी, आप चलो आप लोग जैकेट पहनो बट मैं करूँगी. तो ये धाड़स भी मिलना और
ये कॉन्फिडेंट भी आना, एक क्राफ्ट का पैशन एंड मैडनेस है, वो अब मैंने अपने आप में देखा था कि सब लोग मुझे बोलते कि तू घर में एसी बंद कराती, तूने इस ठंडी में इतनी कोल्ड में शूट कैसे कर लिया. सो दैट्स व्हाट एज एन एक्ट्रेस इट वाज माय पैशन एंड it is something I really want to give it to the audience कि मेरा हमेशा यही सोच है कि हमारे आर्यन सर सक्सेना ने बहुत सारी अच्छी फिल्में गाने बनाए हैं और बहुत सारे यहाँ पे इनक्रेडिबल म्यूज़िक और फिल्म मेकर्स हैं. उन्होंने हमें बहुत खुश किया है अपने गानों से, अपने फिल्मों से. और मैं बोलती कि मेरा अब मौका है कि मेरे भारत की जितनी भी जनता है कि वो विजुअल के साथ वो उनको उस इमेजिनेशन में लेकर जाओ. जितने भी हमारे यंग जनरेशन है या हम सभी प्यार में है ही, और इस वैलेंटाइन डे पे वो ऐसी खूबसूरती के साथ एक मेलोडियस के साथ महसूस करें और उनका दिन अच्छा बने. तो सॉन्ग और एंटरटेन फील्ड इस लोगों के जीवनों को बदलती है, लोगों के मूडों को बदलती है और उनके लिए एक एंटरटेन का सबसे बड़ा सोर्स है गाने. तो वो मेरे नज़रिए में था. जब भी विंड आ रही है, कोल्ड हो रहा है, एक गाने में मैं बर्न हो गई पूरी, एक गाने में मैं पूरी शेक्ड हो गई हूँ और सब लोग देख रहे थे कि कैसे कर रही है और मेरी हेड ऐसे बार बार जैकेट डाल रहे थे. मतलब जैकेट फेंक दे, ऐसा होगा नहीं, अभी ये करना ही पड़ेगा, टाइम बहुत कम है. तो बस यही एक्सपीरियंस रहा और टीम की वजह से ये हो पाया. और मास्टर भी बहुत स्ट्रांगली मेरे पीछे खड़े थे. मास्टर ने भी गिव अप नहीं, क्योंकि कुछ सीन हमने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जो शूट किया हुआ सीन था वो 4 बजे 3:30 बजे के आसपास मिडनाइट में था. और न्यूयॉर्क सिटी में चाहे आप 6 बजे करो, 4 बजे रात में करो, वो पूरा भरा हुआ ही मिलेगा. तो जिस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमको तकलीफ़ नहीं दी और उनकी सिटी हमने प्रमोट किया ऑफ कोर्स. तो हर चीज़ के लिए जितने एनआरएज है जो वर्किंग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. हमारी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत मजबूती के साथ वो खड़े रहे. इतना आसान नहीं है एक नई लोगों को इतनी बड़ी न्यूयॉर्क सिटी को कैप्चर करना और शिकागो में पोर्ट्रे करना, हैविंग स्मॉल कैमरा, हैविंग स्मॉल टीम and having very dreamy, beautiful visuals. So thankful to my master who stood very, very much to me, and I'm so grateful for this experience. For teamwork, sir. Ankita, very hard work artist. I mean, inspired. Ankita and KK Reddy sir, business magnate. లేదు సార్ ఏం మాట్లాడతాను. ఆల్బమ్ బాగా చేయాలి. ఓన్లీ 5 to 6 క్రూ. న్యూయార్క్ సాంగ్లో లాస్ట్ సీన్స్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ దగ్గర లైటింగ్ డల్ అయితే ఓన్లీ మేము సెల్ ఫోన్ లైట్స్ వేసాం. ఫేస్ మీద సెల్ ఫోన్ లైట్స్ వేసి మేము షూట్ చేసాం అన్నమాట. one chance, any movie, any language, any movie, any OTT film, any only one chance, one night and celebrating every chance and hard work and winning. And many directors and artists inspired, and Bollywood and Tollywood, any language, and director sir, Aryan sir. Very good chance. Thank you my producer KK Reddy sir and Ankita Jadhav, mainly Jayant sir. Music is very good, very nice, and lyrics also very nice. Lyrics Sanjay sir and singer Sarudi Bora and Saregama winner Ishita Vishwakarma. Yeah, and team all team very good selection. KK Reddy sir, thank you once again my producer. Tell me about Tollywood में many movies and events also, event management company. मेरा name Satya Media, Satya Dance Company. First of all, 15 years back, Shamak Davar sir, my inspiration Bollywood में and Prabhudeva sir, Lawrence Master and inspiration people, my Tollywood and Chennai Tamil movies. My
टॉलीवुड में मेरा some movies choreographed and same time events also 2000 plus events, live events చేశాను. అలాగే సేమ్ టైం 2 oral records 150 dances 90 minutes non stop record and चिरंजीवी मेगास्टार चिरंजीवी सर का मूवी कैदी नंबर 150. प्लीज encourage everyone. सो दिल धड़क रहा है गाना हम 9 फरवरी को रिलीज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम तुरंत ही कुछ दिनों का गैप लेके 30 फरवरी के आसपास हम मेरा माहिया रिलीज़ करेंगे. सो ये हमारा चैनल है अडोनाई पिक्चर क्रिएशन के म्यूज़िक और ये हम तेलुगु में भी रिलीज़ कर रहे हैं. तो तेलुगु में हमारा ग्रैंड फंक्शन होगा 9 को ही. तो दोनों लैंग्वेज में ये गाना हमने रिकॉर्ड किया है, शूट भी किया है. तो 9 फरवरी दिल धड़क रहा है एंड मेरा माहिया ऑन 30th फरवरी. जी के रेड्डी सर इज़ द बिजनेस गाय. ही इज़ NRA, ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, शिकागो. And they also produced before movie Indrani. I was part of that movie also, and he also being part of our when we are doing the event. There is a ATA organization. It's the American Telugu Association organization. All the NRA of Telugus they gather together in 2 years and they celebrate the culture, celebrities, and all this stuff. So I was part of that while promoting my film Indrani. So master came to me that are you interested to do album song with our producer, and I said why not master garu, let us do this song. So that's what Mr. Reddy came. They came to the picture, they heard the song. I also recommend them the song, like I also have the song. So we together collaborated each other. So that's what it came. ये गाना कंपोज करना हमारे लिए शुरुआत में तो मुझे लगा कि नॉर्मल सा है, कुछ जैसे नॉर्मल हम गाना कंपोज करते हैं तो हमने वैसा ही किया. लेकिन क्या है कि जब कुछ अच्छा होना होता है ना तो फिर आपको पता नहीं होता, ऊपर वाले को पता होता है कि क्या करना है. आपने शुरुआत करी और आपको लगा कि चलो हम ये गाना बना रहे हैं, नॉर्मल सा शूट होगा, सब कुछ होगा. लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी कुछ और थी. ये गाने को थोड़ा बड़ा बनाना था और हमारे डायरेक्टर साहब और अंकिता जी की मेहनत की वजह से, हमारे प्रोड्यूसर साहब की वजह से ये गाना बहुत बड़ा हो गया. अब ऐसा हुआ कि जब हम गाना पहली बार तो हमने बना दिया, गाना मिक्स करके भेज दिया. जब हमने फिर वीडियो देखा तो हमें लगा नहीं, इसमें और काम करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जिस हिसाब से शूटिंग हुई है, जिस हिसाब से गाने बने हैं, तो हमने जो म्यूज़िक बनाया वो इसमें काम नहीं करेगा. हमने फिर वापस म्यूज़िक बनाया. फिर हमने काफ़ी काम किया, 3-4 महीने हमने म्यूज़िक बनाया, मिक्सिंग करी. फिर हमने सिंगर चेंज किए. जो हमने पहले सिंगर जिससे गवाया था वो सिंगर शूट नहीं किया, फिर हमने दूसरा सिंगर लिया, फिर वापस मिक्स किया गाना. फिर जा कर के जब हम वीडियो के साथ मैच किए तब लगा कि नहीं, अब ये गाना अच्छा हो गया. हमें भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हो, अच्छे लोगों के साथ रहते हो, टीम अच्छी बन जाती है, तो फिर आपको 100% देना पड़ता है. आप कहीं से ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है. जब चीज़ें आपको अच्छी मिल रही, ऊपर वाला आपको अच्छा एक मौका दे रहा है, तो आप कोशिश करो जितना अच्छा हो सके. तो हमने कोशिश करी है. अब आप लोगों ने भी गाना देखा, आप लोगों ने गाना सुना. अब आप लोग हैं के ऊपर है. बाकी जो जब 9 तारीख को गाने यूट्यूब पे रिलीज़ होंगे तो बाकी ऑडियंस का भी हमारे ऊपर ये आएगा. तो देखते हैं, हम कोशिश करते हैं. हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना कि हमारा गाना अच्छा जाए, हिट हो जाए. और हमारी पूरी टीम की मेहनत, हमारे के रेड्डी साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम चाहेंगे कि उनका ये काम जो है सब लोगों के पास है और सब लोग का तारीफ है. मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी मेरी शुरुआत बाकी है. और मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारे अल्फाज बैठे बैठे आ रहा था अभी मेरे ख्याल. तो गाने तो बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे गाने भी आ रहे हैं. तो एक दिन मैं बैठा था तो अंकिता का फ़ोन आया. कहाँ करी? मैं बाहर हूँ, अमेरिका में हूँ. अच्छा, फिर मैं कुछ करने गए. संजू सर गए हैं तो वहाँ से कुछ प्लान है कि कुछ गाना करना है. हाँ, तो आप
इतने दिन में कर सकते हो? मैंने कहा, कोशिश कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते? कोशिश की और जैसा उसने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा, और वो गाना बन गया और अभी आपके सामने आ गया। आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हमारी जो कोशिश होती है, अच्छा लिखने की कोशिश होती है कि और ज़्यादा अच्छा हो। थोड़ा मेरा था कि हम लोग बहुत आगे, बहुत अजीब अजीब सी लिरिक्स आ रही है, मैं थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा हार्ट में टच होनी चाहिए लिरिक्स। कोशिश वो करेगी, वो ऐसे कुछ लिखते हैं, इनोसेंट लगना चाहिए थोड़ा सा, और लिख लिया और अच्छा हो, अच्छा मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा शायद। आपने ऑलरेडी देखा है, बहुत अच्छा कंपोजिशन है और बहुत ही ऑनेस्टी से काम किया गया, बिकॉज ऑनेस्टी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपके काम में ऑनेस्टी है तो वो फ्रेम बताएगा, राइट? आई थिंक वो बता रहे थे। तो अगर मैं कुछ बोलूँगा भी तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अंकिता अच्छी लग रही है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन अच्छी है, बहुत अच्छी मेलोडी है और अच्छी कोशिश है, जैसा कि आई थिंक संजीव जी और जैन दोनों की बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं, इस काम को रिकॉग्नाइज मिलनी चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बिकॉज सबकी ऑनेस्टी नजर आई है। स्पेशली हमारे मास्टर जी का जो सत्या जी जो हैं, इनकी ईमानदारी देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और उनकी ईमानदारी मुझे हर एक फ्रेम में नज़र आ रही थी। तो मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने जस्टिस किया है गाने के साथ। कुछ भी टेक्निकली सॉन्ग करेक्ट है। आई थिंक सबने बहुत अच्छा काम किया। कितना बोलूँ, मतलब इतना कुछ है नहीं। It is the biggest accomplishment of ours, success of ours, that Aryan Saxena is a huge big director of Bollywood. He's giving us compliment. So we got approval here. Exactly. सबकी बहुत अच्छी मेहनत है। ये एक अच्छा, आप सबकी मेहनत का ये नतीजा है और अच्छी चीज़ बन के आई है। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं, ये चीज़ लोगों को पसंद आएगी और इसके जरिए और आपको काम मिलेगा। Thank you so much, sir, for coming for our